मुक्ति सौंदर्य शौर्य की धरती मध्य प्रदेश है। मिला देश सेवा का अवसर ये सौभाग्य विशेष है। ये अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना मध्य प्रदेश है। लोक प्रशासन की अर्शाला मध्य प्रदेश अकादमी हमें सिखाती कर्म केंद्र में हो समाज और आदमी। सेवामय नेतृत्व प्रशासन समझ भावना से युक्त हो। हम जन से है लक्ष्य हमारा, जन का हित जन का सुख हो। नवाचार ज्ञान और तकनीक हमारे साधन हो विकास संकल्प प्रकृति श्रम निष्ठा के संसाधन हो। वेतन भोगी नहीं समर्पित सेवक और सिपाही हम, संवेदन से युक्त प्रगति के मंत्र दीन के साथी हम। निर्भय होने स्वार्थ में ऐसा तंत्र बनाएंगे, पारदर्शिता से सुदूर तक लोक लाभ पहुँचाएंगे। देशभक्ति ईमान धर्म नैतिकता को अपनाएंगे। राज्य भार पर हम विकास का उज्ज्वल तिलक लगाएंगे। ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अपनी प्रशासन अकादमी। Thank you everyone. Now, I request our respected course director ma'am, Dr. Mamta Khede ma'am, to welcome ma'am with Angvastra, sapling and a body painting. And I request our photography committee to take the snapshots. Thank you, ma'am. As we all know, we have with us today for the eminent speaker session respected Snehlata Srivastava ma'am. Ma'am is an MPhil in regional planning and economic growth, postgraduate in geography from Bhopal University. Ma'am is an IS officer of Madhya Pradesh cadre of 1982 batch. Ma'am has worked on various positions in Government of MP and on deputation to Government of India in her 35 years of government service. Ma'am held positions in addition to field postings as SDM, Additional Collector and DM in districts and in personnel and finance majorly. Ma'am has managed Indian Police Service cadre of Madhya Pradesh State, Indian Income Tax Service at Government of India and Supreme Court and the High Court Judges Establishment too. Personal matters including vigilance, departmental inquiries and complaints redressing also. Ma'am held the position of Chief Vigilance Officer in Railways Public Sector Undertaking RITES in Delhi. Ma'am has also worked as a Director Budget in the state and as Joint Secretary DEA as well as the Additional Secretary to the Department of Financial Services, where Ma'am has dealt with multilateral banks like ADB, World Bank, etc. and public sector banks, and also including the insurance companies and the pension funds too. Ma'am was on the board of LIC, IDBI and NABARD. Ma'am has retired as a Secretary, Government of India Justice and dealt with higher judiciary. Ma'am has made a history when she got selected as the first woman Secretary General of House of People, where Ma'am has contributed in managing the House and its Secretariat, encouraging digitization and environment-friendly initiatives.
Ma'am is on various boards of companies and chairperson of Madhya Pradesh Urban Homeless Committee constituted as per the Supreme Court orders in the state. Ma'am has also travelled number of countries in official capacity and well versed with diplomatic issues. Ma'am has also done number of loan negotiations for the country with Asian Development Banks and World Bank. With this, we welcome you once again, ma'am. Today, ma'am will be sharing her experiences and insights on the very vast and an important topic for all of you, which is financial management and budget process. Now, I respectfully hand over the session to you, ma'am. Thank you. Thank you for the kind words. Thank you for inviting me as a speaker for the. I think you can hear me. To address the August gathering of senior officers of Madhya Pradesh government. I'm told that there are local audit officer, deputy superintendent police, then labor department officers, cooperatives department, and tehsildars who had now doing their foundational course, induction course. Okay, so it's a large section of officers, I would say. मैं हिंदी में दूंगी, आप चिंता नहीं करें। शुरू में थोड़ा आदत पड़ गई है तो जैसा कि आपको खड़े होके बोल सकते हैं मैम, जैसे आप इससे मुझे नहीं वो कॉलम और आप लोग को बजट के बारे में बजट प्रोसेस के बारे में कितना उससे स्लाइड्स बनने के नेक्स्ट अच्छा वो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो लोग क्या हाँ वही तो बजट आप लोग स्टेट में सर्विस कर चुके हैं कि अभी फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। और जो नायब तहसीलदार आए हैं वो कर चुकी हैं कुछ जॉब? वो कर चुके होंगे पूरा, है ना? तो एनीवे इट्स मतलब स्टार्टिंग वाले में ही में है आप लोग। पर बजट के बारे में आपको पता होगा बिकॉज आपने करंट अफेयर्स में अपने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा होगा। उसमें बजट जैसा कोई शब्द जैसा आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। बट हम लोग कॉमन उसमें सभी लोग उसको बजट ही कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बजट में हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंसेस के वो रखे जाते हैं। फिर कितना साल में वो हर साल का होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक ही साल का बनता है। और उसमें आपको रेवेन्यू जो होती है वो लेनी पड़ती है, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर लेना पड़ता है। और उसमें जो गैप हो जाता है उसको डेफिसिट बजट कहते हैं। और उस डेफिसिट को कैसे आप भरेंगे, या तो आप मार्केट से लोन उठा के उसको पूरा करते हैं या टैक्स लगा के लोगों से रिसोर्सेज लेते हैं। और जब तक वो मैच नहीं करता आप बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये तो एक टेक्निकल चीज है, वो सब आप लोगों को पता है। और उसमें कई तरह के डेफिसिट माने जाते हैं। एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का जो अंतर होता है उसको कहते हैं। जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो जो सरकार बाजार से लोन लेती है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है हर साल उनको। जैसे अभी सरकार ने मार्केट बोरोइंग से 16,000 करोड़ लिए, तो इसको चुकाना भी पड़ेगा। तो इसको चुकाने के लिए हर महीने उनको
कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, और वो अमाउंट काफी बड़ा होता है क्योंकि इसके पहले भी लोन लिया होता है, उसके पहले भी लोन लिया होता है, तो वो सालों से चलता रहता है। कोई लोन 12 साल का है, कोई 15 साल का है, उस तरह से मार्केट से बोरोइंग होती है और वो आरबीआई की परमिशन से होती है। तो जो ये पेमेंट करना होता है, ये इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट में से माइनस करके जो बचता है उसको कहते हैं। उससे ये पता चलता है कि आपको और कितना मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कितना मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। बाकी फिजिकल डेफिसिट है, जो फिजिकल डेफिसिट में जैसे आपको पता है कि उसके अंदर एक एक्ट बना हुआ है कि हाँ, इससे आएंगे हाँ ठीक है, इससे नीचे से ठीक है, ओके थैंक यू। फिजिकल डेफिसिट के लिए एक एक्ट बना हुआ है और जिसमें ये तय है कि जीडीपी का एक सर्टेन परसेंटेज ही आप फिजिकल डेफिसिट पे रख सकते हैं टू कंट्रोल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो इससे ज्यादा लोन ना ले मार्केट से। नहीं तो गवर्नमेंट का ये रहता है कि उनकी डिमांड्स बहुत रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं, तो उसको उनको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। आप लोगों के लिए बजट प्रोसेस की जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप काम करेंगे तो कोई भी पैसा खर्च करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि बजट में है कि नहीं है, क्योंकि अपनी जेब से तो खर्च नहीं करेंगे और कोई भी आपको पैसा ऑफिस में निकाल के नहीं देगा, ट्रेजरी में जाएगा तो उसमें भी लिखा होगा कि कौन से हेड में मेजर हेड होगा, माइनर हेड होगा, डिटेल हेड होगा, वो सारे हेड होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए जो आपके विभाग से संबंधित है। सारे पूरे बजट का, पूरे स्टेट के बजट का आपको पता ना भी रहे, कम से कम आप जिस विभाग में हैं उस विभाग में आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स में डिमांड नंबर क्या है, उसका मेजर हेड क्या है, उसका माइनर हेड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसमें डिटेलिंग हेड में क्या है। जैसे कि ऑफिस एक्सपेंडिचर एक हेड है, डिटेल हेड है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसमें पेट्रोल डीजल होगा, उसके अंदर स्टेशनरी होगा, ये सारे जो छोटे आइटम्स हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। नहीं तो आपको पता चला कि आपको फाइल्स की नोटशीट्स चाहिए हैं तो आप कहाँ से, कहीं से भी आएगी, चाहे वो प्रिंटिंग, पहले हमारे समय में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आती थी, प्रिंटिंग प्रेस से आती थी, अभी भी वहीं से आती है तो मुझे पता नहीं, पर जो भी वो सप्लाई करते हैं उससे उसका चार्ज करते हैं आपसे। वो बुक एक्सपेंडिचर होता है, वो आपको पता नहीं चलता है ना, आपको बिल बना के नहीं लगाना पड़ता, पर वो आपके उसमें से काट लेंगे, ऐसे उनको सुविधा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसी कुछ सुविधाएं हैं। तो आपको इसलिए जानना जरूरी है कि कोई भी काम करने के पहले, जैसे आपने सोचा, बहुत अच्छा काम सोचा, वेलफेयर का सोचा, आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस में ही कोई बहुत जरूरत है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे अपने घर में हम कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी खर्च कर सकते हैं जितनी हमारे पास हमारे साधन है, पर यहाँ पे साधन है भी, पर वो उस पर्टिकुलर मद में है कि नहीं ये सोचना जरूरी है। और बजट की कोई कमी नहीं होती है, जैसे कहते ना पैसा नहीं है, जो भी ये कहते हैं या आपके ऑफिस में जो ये कहे कि पैसा नहीं है, मैं चूंकि फाइनेंस में रही हूँ, डायरेक्टर बजट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमारे जो विभाग हैं वो सीरियसली चीज को देखते नहीं हैं या फिर वो उसके बारे में इतना डिवोशन से सोचते नहीं हैं, इसलिए ये एक आता है कि बजट में पैसा नहीं। तो साल में 3 सप्लीमेंट्री बजट आते हैं। फर्स्ट जब मॉनसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा और बजट सेशन होता है, 3 सेशन होंगे, तीनों सेशन में एक एक सप्लीमेंट्री बजट आता है, तो उसका ज्यादा कोई गैप नहीं रहता है। अगर किसी मद में आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको जुड़वाने के लिए अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। पर जनरली क्या होता है कि हम लोग की
मतलब आई शुड बी सेइंग, बट हम लोग की नींद थोड़ी देर से खुलती है। फिर हम कहते हैं कि अब इसे बजट में शामिल करो। तो बजट में शामिल करना आसान काम इसलिए नहीं होता कि हमारे रिसोर्सेज को हमें देखना पड़ता है, और उसकी प्रोसेस एक होती है कि कैबिनेट से अप्रूव होता है, फिर वो सप्लीमेंट्री में जाता है। अगर आपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री के लिए प्रपोजल या बजट के लिए प्रपोजल देर से भेजा तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि बजट में जो साल भर का बजट आ रहा है उसमें आपका मद नहीं ऐड हो रहा है, तो आप फर्स्ट सप्लीमेंट्री के लिए प्रयास करें। सबसे आसान जो मैं सोचती हूँ कि होता है फर्स्ट सप्लीमेंट्री में आइटम को जुड़वाना, क्योंकि उस समय तक खर्चे भी ज्यादा नहीं होते हैं। हम लोग जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे मध्य प्रदेश के, तो हमने अपना इंटरेस्ट पेमेंट एडवांस में कर दिया था, क्योंकि हमें जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस मिलता है, जो डिवोल्यूशन फंड मिलता है भारत सरकार से, जो इनकम टैक्स का और एक्साइज वगैरह का जो उनके पास पैसा आता है, वो सभी स्टेट्स में एक फॉर्मूले, गाइडलाइन फार्मूले के हिसाब से, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से सभी स्टेट्स को कुछ क्राइटेरिया बेसिस पे परसेंटेज फिक्स्ड है, उसके हिसाब से मिलता है। वो मैं आपको बताऊंगी आगे। पर वो पैसा जैसे हमारा मार्च खत्म होता है, अप्रैल में शुरू हुआ तो सब जगह थोड़ा शांति हो जाती है। तो वो अप्रैल में मंथ ऐसे होते हैं जब आपको शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस तो बराबर मिल रहा है, पर आपके विभाग उसको उतनी तेजी से खर्च नहीं कर रहे हैं। तो उस समय अगर इंटरेस्ट पेमेंट हम एडवांस में कर देते थे तो हमारा जो इंटरेस्ट बचता है, जैसे कि आप प्रीपेड लोन, जैसे आपने बैंक से लोन लिया और कुछ पहले पेमेंट कर दिया तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उसमें इतनी बचत हो जाती थी कि हम पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट की सैलरी फ्री हो जाती थी। तो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर अस कि हमने ये फाइनेंशियल प्रूडेंस का काम किया कि जब हमारे डिपार्टमेंट्स खर्च नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमने अपना इंटरेस्ट बर्डन कम कर दिया, और जो इंटरेस्ट का हमारे को फायदा हुआ उससे एक तरह से हम लोगों ने अपनी सैलरी मतलब कमा ली। तो गवर्नमेंट को खर्चा उतना कम कर दिया हमने। और जब अक्टूबर के बाद से ये जो एक्सपेंडिचर का खर्च है, एक्सपेंडिचर तो खर्च ही है, एक्सपेंडिचर का जो रेट है वो बढ़ता है, और मार्च तक आते आते, फरवरी तक आते आते तो मतलब ऐसा हो जाता है कि उसी शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में आपको काम करना है, उसी रिसोर्सेज में काम करना है आपको, और इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए ये सारी चीजें जो मैंने अपनी आपको दिखा है, हाँ, वो जो कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे बजटिंग होती है, उसकी अकाउंटिंग होती है, ऑडिट होता है उसका, और उसकी रिपोर्टिंग होती है, जो कि आप लोग अपने अपने विभाग का एक तो प्रशासनिक रिपोर्ट जरूर पढ़ें, पिछले कम से कम 3 साल के पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आपके विभाग में क्या क्या काम हुए हैं और विभाग में क्या अचीवमेंट्स हुए हैं। वो आउटकम बजट होता है जो बजट की किताबों के साथ हर विभाग को देना होता है। तो वो आउटकम बजट भी देखें कि आपके विभाग ने अचीव क्या किया। जनरली हम इन किताबों को बहुत गंभीरता से देखते नहीं हैं, और अगर आप अपने विभाग पे पकड़ रखना चाहते हैं तो आपको ये 2 चीजें जरूर देख लेना चाहिए। और अगर हो सके तो सिमिलरली भारत सरकार का अगर विभाग है जो सेम काम करता है, कुछ विभाग वहाँ ऐसे जो यहाँ नहीं है तो वो नहीं देख सकते, परंतु ज्यादातर विभाग जैसे लेबर है, लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट होगी और उसमें आपके मध्य प्रदेश के बारे में, जिलों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा अगर, तो आपको वो भी पता चलेगा कि वो किस क्राइटेरिया को देखते हैं और क्या चीजें हैं जो ध्यान में ऑडिट लाता है। ऑडिट रिपोर्ट्स देखना भी बहुत जरूरी है जो विधानसभा में प्रस्तुत होती हैं। आपके विभाग से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को भी देखें आप,
तो उसमें ज्यादातर तो यही होता है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, बट गलतियों से सीख लेने का भी हम लोग का ही काम है। तो अगर वैसा हुआ है तो हमारे समय में ऐसा कोई काम ना हो। अभी एक न्यूज पढ़ रहे थे कि निशातपुरा प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो गया है, रिनोवेशन हो गया, बहुत अच्छा बना है, पर इट हैज बिकम अ घोस्ट स्टेशन, क्योंकि कोई ट्रेन वहां नहीं रुकती है। तो हमने भारत सरकार के हमारे एक मेंबर ट्रैफिक थे जो अपने वो भी रिटायर हो गए, तो हमने उनसे पूछा कि थोड़ा पता करके बताइए कुछ ये ऐसा क्यों है, पेपर में पढ़ा था कहीं न्यूज में। तो उन्होंने बताया कि साहब वो सोचा गया था कि वहां पे कुछ गाड़ियों को टर्मिनेट करेंगे और कुछ गाड़ियां वहां से चलाएंगे, और वहां का रास्ता सकरा है और इस तरह की चीजें। तो बात ये है कि क्या ये चीजें पहले नहीं देखनी थी? मतलब जब आप कुछ लाख रुपए खर्च कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को ठीक करने में, तो अब 3 साल से 2023 में वो बन के तैयार हुआ। अब 3 साल में तो वो घोस्ट स्टेशन है, तो उसमें नल निकल गए होंगे बाहर, वहां का सीमेंट निकल गया होगा, पता नहीं, अब मैं तो गई नहीं हूँ, बट एनीबडी हु गोज देयर कैन सी। तो ये जो चीजें, इनफैक्ट आई एम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की, तो हम लोग उसका एक स्कीम देखने गए थे। तो अब आप देखिए कि वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, मतलब वो पानी देने की स्कीम है, लोगों के घर में नल तक लग गए हैं, पर पानी जहां से आता है वो पानी नहीं आया है। तो जो पूरी स्कीम बनी है वो इस बेसिस पे बनी थी कि पानी ये दूसरा डिपार्टमेंट है जो वहां तक लाएगा, और उस पानी से पानी साफ होकर घरों तक पहुंचाया जाएगा, प्योर वाटर। अब अगर आप उसको ये है कि अब नल में पानी नहीं आएगा तो लोग बाग थोड़ी नाराजगी भी व्यक्त करेंगे, फिर नल गायब भी होने लगेंगे और पाइप भी खराब होने लगेंगे। तो अब जब तक पानी आएगा तब तक पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खराब हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी और बड़ी कहना चाहिए, बड़ी चीज है, पर अब वो दूसरे विभाग ने नहीं करके दिया तो अब ये कहते हैं हमारी क्या गलती है। बट मालूम है कि इसमें आगे जाकर के कोई समस्या, ऑडिट ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्योंकि इतना पब्लिक का पैसा लग गया उसमें, करोड़ रुपए, और वहां पे पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो कोशिश है कि वहां पे इंडिपेंडेंट कोई सोर्स ऑफ वाटर कर दिया जाए। जी, क्योंकि बात चलिए, मैं बोलना चाहूँगी गाडगिल फार्मूला जो है उसमें जो क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं उसमें मध्य प्रदेश एक सबको ज्यादा शेयर मिलता है। उसका कारण है फॉरेस्ट कवर, हमारे यहाँ का फॉरेस्ट कवर। तो जब आप लोग अपने क्षेत्र में जाएं तो फॉरेस्ट कवर का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हमको ज्यादा शेयर दिलाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ केवल खड़ा है और उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो गाडगिल फार्मूला में टैक्स बढ़ाने के तरीके जो स्टेट करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है। केरल जिसने कि पॉपुलेशन में कंट्रोल किया है उनको कम मिलता है, और उनका टैक्स रेवेन्यू भी सिस्टम भी एफिशिएंट है, और उसके बावजूद भी उनको कम मिलता है क्योंकि उनके यहाँ फॉरेस्ट कवर नहीं है, उनको फॉरेस्ट कवर का बहुत फायदा मिलता है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट एंड सप्लीमेंट्रीज, वो मैंने लिखा है सप्लीमेंट्री। मेन बजट तो जो हमारा मार्च में आता है, फरवरी में सबमिट होता है, 28 फरवरी 29 फरवरी को, वो उसके बाद जो है साल भर का बनता है, फिर उसमें सप्लीमेंट्री बजट आता है। सप्लीमेंट्री बजट में कोई भी नई स्कीम शामिल होती है तो उसको न्यू आइटम कहते हैं। और न्यू आइटम में कई बार जैसे कहीं से सेविंग हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम है जिसमें अब आपको उतना पैसा नहीं चाहिए है, तो वहां से सेविंग दिखा करके और आप उसको नई स्कीम में थोड़ा पैसा डाल के और बाकी कहते हैं कि सेविंग से हम कर सकते हैं। तो
ये जब आप कोई प्रस्ताव बनाते हैं तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि ये कैपिटल से खर्चा आएगा कि रेवेन्यू से आएगा। इसमें भी आपको पता होगा कि 2017 से जो पहले प्लान एंड नॉन प्लान का जो एक विभाजन था वो खत्म हो गया है ना। एक रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि प्लान नॉन प्लान नहीं होगा, उसकी जगह जो नॉन प्लान है, एक्चुअली जो पहले नॉन प्लान हुआ करता था वो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, जो प्लान होता था वो कैपिटल में आ गया। जैसे कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है या स्कूल बन रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और रेवेन्यू में जो डॉक्टर्स की सैलरी है या उस तरह के वहाँ काम करने वालों का है, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो उसमें चला जाएगा। तो ये न्यू आइटम्स जब अपन बनाते हैं तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके कार्य क्षेत्र में या आपके सीनियर्स ने कहा कि भाई इसके लिए कुछ बजट मांग लो सरकार से, जब हम लोग नए रहते हैं ना, कई बार ऐसी चीजें बोली जाती है जो हम लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि हमको इतनी सारी नुआंसेस पता नहीं रहती। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं इंदौर में पोस्टेड थी, मेरी पहली पोस्टिंग इंदौर में हुई थी, असिस्टेंट कलेक्टर इंदौर, और जाते से ही वहां पे कर्फ्यू लग गया। तो कंट्रोल रूम में मतलब सब दुकान वगैरह सब बंद हो गई, कर्फ्यू लगा तो सब लोगों को कहा गया कि कंट्रोल रूम आइए, और तो हम लोग सब कंट्रोल रूम पहुंचे। तो हमारे जो डीआईजी साहब थे उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि स्नाइपर रूम जाओ और कर्फ्यू का ऑर्डर बना लाओ। अब कर्फ्यू वर्ड था ही नहीं उस समय तो धारा 144 होती है तो पता था, परंतु कर्फ्यू का कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो हम लोगों को ये सिखाया गया था एकेडमी में कि जब आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी कैसे करना है तो उसका प्रेसिडेंट मांग लो ऑफिस से। तो प्रेसिडेंट जब आपको मिलेगा तो उससे आपको काफी जानकारी हो जाएगी। तो हमने भी यही किया। हम गए कलेक्ट्रेट इंदौर में, वहां पे तो खैर बंद था ऑफिस, शाम का समय था, और फिर वो ऑफिस जो कलेक्टर के ऑफिस के लोग थे तो उनसे कहा कि भाई एक कर्फ्यू का पुराना ऑर्डर निकाल दो। तो उन्होंने एक पुराना ऑर्डर निकाल दिया, उसके बेसिस पे हमने अपना उस दिन का ऑर्डर बना लिया और बना करके लेके पहुंच गए। तो दे वर थिंकिंग कि शायद हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो चेहरे पे हमारे भाव था जब उन्होंने हमसे कहा था तो उनको लगा कि ये तो डब्बा गोल है और ये नहीं बना पाएंगे। एक तो महिलाओं के साथ भी, सॉरी टू से, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगी, एक तो महिलाओं को लोग ऐसा सोचते भी हैं कि शायद पुरुष को भी उस समय ऐसे ही सोचते हैं लड़कों को, बट समहाउ दैट इज माय फीलिंग कि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो ये सोचेंगे कि अरे ये लड़की है इसलिए नहीं कर पा रही है। ऐसा फीलिंग था। वो जो फीलिंग थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो खैर बना के ले गए, तो उन्होंने खैर उसमें कुछ गलतियां थी, वो सब ठीक ठाक कर दी, फिर वो निकल गया। तो वो फिर हमने वो ऑर्डर निकाल दिया। तो मेरा ये कहना है कि आपको जब भी कोई कहे कि आप एक नया प्रस्ताव बना के लाइए, तो पहले कोई प्रस्ताव बने हैं, उसमें प्रेस ही लिखनी पड़ती है, कहाँ से पैसा आएगा वो सब लिखना पड़ता है। इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग में आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना, आई जस्ट थोड़ा ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक। यहाँ पे भोपाल में एक स्टेट गैराज है जो कि होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है। मैं होम डिपार्टमेंट में बहुत रही हूँ, और आईपीएस वाला जैसे उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था, आईपीएस ऑफिसर्स का कार्ड देखती थी। तो उन्होंने स्टेट गैरेज में जो वहाँ का यूनियन लीडर था, स्टेट गैरेज में गाड़ियां होती है मंत्रियों और अधिकारियों की, जो एम्बेसडर हुआ करती थी उस समय, ये बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, 80s की 90s की। तो वो यूनियन लीडर जो था वो बड़ा पीछे पड़ा कि आप स्टेट गैराज आइए, वहाँ पे हम यूनियन वालों की कुछ डिमांड्स हैं। तो हम लोगों ने भी कभी देखा नहीं था। एक तो मेरा थोड़ा शुरू से एक सिद्धांत जो हमें सिखाया है, हमारे कलेक्टर थे एपी के जोगी साहब, कलेक्टर इंदौर, जो बाद में मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, और बहुत टफ थे और बहुत नॉलेजेबल थे।
तो उनसे बहुत सारी, उनके सामने तो हम लोग बहुत ही छोटे लगते थे, हमको समझ नहीं आता ये कैसे इतना सब कुछ करते हैं। पर बाद में जैसे जैसे नौकरी करते गए तो उनकी जो करने की आदतें थी वो लगा कि हाँ ये जो करते थे ये बहुत बड़ा अच्छा करते थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, तो वो कहते थे कि जहां भी आप काम करें उसके सारे ऑफिसेस देख लें, चाहे एक छोटे से कमरे में हो वो ऑफिस, चाहे पेड़ के नीचे हो, पर जब आप काम करना शुरू करें तो पहले ही हफ्ते में वो सारे ऑफिसेस जाके देख लें कि कहाँ हैं लोग, कैसे बैठते हैं वहाँ पे, कौन काम करता है, तो उससे आगे जाके बहुत सुविधा हो जाती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा कि वो स्टेट गैरेज में बुला रहे हैं तो चले चलते हैं। तो वहां गए, आप बिलीव नहीं, वो जो स्टेट गैरेज था पुराना, वो अंग्रेजों के जमाने का अस्तबल था, अस्तबल जिसमें घोड़े बनते थे। हाँ, तो उसका फर्श था वो जो चेकर बोर्ड वाला होता है ना, पत्थरों का, जिसमें ऐसे छोटे छोटे टाइल्स लगे रहते हैं। और एक कमरा तो ऐसा था जिसमें चारों तरफ बाबू बैठे थे और छत ऐसे गिरी हुई थी जैसे कि किसी की फ्रॉक या साड़ी, मतलब यानी जगह जगह पानी भरा हुआ था। सो वी वर घास की कैसा ऑफिस है भाई तुम लोग, क्या बोले। मैं तो मैडम कितना लिख के देता हूँ कि ऑफिस बहुत खराब दशा में है और ये दशा है, ये दोनों में बहुत फर्क है। जब आप रियल में देखें और कोई कागज पे लिख के दें तो लगता है अरे ये यूनियन वाले तो लिख के देते ही रहते हैं टाइप। तो जब उसको देखा तो कि मैं आई, मैंने जाकर स्टेट गैरेज की बिल्डिंग की कोई फाइल है, तो 35 साल पुरानी फाइल थी जो कि रिकॉर्ड रूम से निकलवाई गई। तो उसमें था कि इसको स्टेट गैरेज की बिल्डिंग बननी है और वो फाइनेंस 2-3 चक्कर लगा चुकी थी, फाइल हर बार जाती थी और रिजेक्ट होके आ जाती थी कि कुछ क्वेरी लग के आ जाती थी, ये जानकारी दो वो जानकारी दो। तो फिर लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते थे या जो अफसर भेजता था उसका ट्रांसफर हो जाता था। तो वो फाइल आई, फिर मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को बुलाया। मैंने कहा आप ये बताओ ये बिल्डिंग अगर ठीक से बना दोगे तो कितने पैसे लगेंगे और कितने दिन लगेंगे। तो बोले मैडम जाके देखता हूँ। फिर उन्होंने देखा जा था, तो उन्होंने कहा अगर केवल ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे तो उस जमाने में 5 लाख रुपए लगेंगे और 1 साल में मतलब सरकारी उसमें तंत्र में 1 साल में बन जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा आप एस्टिमेट दे दो, तो उन्होंने एस्टिमेट दे दिया। फिर हमने सोचा कहाँ से खर्चा होगा, तो कहीं से 5 लाख रुपए। होम डिपार्टमेंट में बाय द वे कंस्ट्रक्शन का इतना ज्यादा नहीं होता है, थानों वगैरह का तो होता है और आजकल पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में कुछ पैसा होता है तो उनसे बन सकता है, उस समय नहीं था इतना। तो फिर बजट कहाँ से आएगा, तो ये था कि भाई बजट जो है वो या तो कंटिजेंसी से दें, बिकॉज आई गॉट लिटिल वरीड कि अगर ये जो छत ऐसी साड़ी के पल्लू जैसे लटकी है, अगर ये गिर गई और मेरे किसी क्लार्क का कुछ नुकसान हो गया तो कहेंगे मैडम भी देख गई थी, उसके बाद भी ये हालत। तो मैंने तो फाइल पे ऐसे लिखा कि एस्टिमेट लगाया और ये कहा 5 लाख रुपए की जरूरत है, कहीं से दो भाई, हमें नहीं पता, हमारे पास नहीं है, और हमारे कुछ काटने हो कहीं से तो काट लो, हमें नहीं पता, वो भी नहीं मालूम कहाँ से काटोगे आप। पर हमने कहा कि जो भी अफसर इसको ना कहे उससे निवेदन है कि वो हमारे साथ एक बार चल के स्टेट गैरेज की कंडीशन देख ले। और वो सब लिख दी कंडीशन की, छत ऐसे लटकी है और ऐसा है और वैसा है, पानी भरा है, उसी में बाबू बैठ के काम करे। तो 3 दिन बाद वल्लभ भवन की लिफ्ट के सामने, वो तब मैं होम में थी डिप्टी सेक्रेटरी, तो वल्लभ भवन की लिफ्ट के सामने शुगनू साहब थे उस समय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस। तो वो उसी समय ऑफिस आ रहे होंगे तो वहां दिख गए। बोले श्रीलता, तो तुम्हारी स्टेट गैरेज की बिल्डिंग मैंने अप्रूव कर दिया है 3 दिन बाद। तो अरे थैंक यू वेरी मच सर। सर वो क्या करें, वो ऐसे जो डेप्टी सेक्रेटरी था वो मेरा बैचमेट था, दिलीप सामंतरे साहब। तो मैंने उसको आते से फोन किया, बोले फाइल कहाँ है, तुम्हारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस कह रहे हैं कि उन्होंने सैंक्शन कर दी।
तो कहता है आपकी फाइल को कौन मना करेगा। हमने जो एक लाइन लिख दी कि अगर आप मना करो तो मेरे साथ चल के देख लो। हर जब भी मिलते शंभू साहब पूछते सहता वो तुम्हारी बिल्डिंग तैयार हो गई, तुम्हारी बिल्डिंग तैयार हो गई। और वो PWD वाले जो थे वो बड़े अच्छे थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वशिष्ठ करके थे। फिर उन्होंने वो बना दी बिल्डिंग, तो एटलीस्ट तो मतलब 35 साल से जो फाइल अटकी रही हो और कोई पर्सनल टच दे दे, तो अगर जिसको आप सोचते हैं ऐसा नहीं कोई काम जो कि मतलब दिखावे का हो, उसके लिए पैसे नहीं मांग रहे भाई, जो बहुत जरूरी है काम, तो उसके लिए इस तरह का स्टेप्स अगर ले तो मेरे ख्याल से कोई भी पैसे की, लेट मी टेल यू, मैं फाइनेंस में रही हूँ, यहाँ भी भारत सरकार में भी पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। आप अगर जेन्युइन चीज के लिए मांगेंगे तो आपको मिलेगा। एक तो स्टाफ के लिए जो मांगते हैं बहुत ज्यादा, उसमें जो काम आउटसोर्सिंग से, आजकल तो खैर बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग से होने लगा है, तो उसमें सरकार क्या बचाती है, पेंशन बचा रही होती है, क्योंकि जो परमानेंट आते हैं लोग उनको पेंशन देनी पड़ती है, और पेंशन का खर्चा लगभग 70% 80% हो रहा है। तो आप लोगों को शायद पेंशन वो नई वाली NPS में मिलेगी ना। हाँ, तो वो अभी जो हम लोगों को पेंशन पुराने जो अधिकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो एक तरह से हमारे को डिफर्ड बाद में मिलती है। आप लोगों को 50% तो उसी समय एक तरह से मिल जाता है, क्योंकि जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका 50% सरकार कंट्रीब्यूट कर देती है। तो वो एक तरह से डेफर्ड लाइबिलिटी नहीं है, वो आज ही जमा कर दे रहे हैं, भले ही आपको मिल नहीं रहा है, वो मार्केट से रिलेट किया हुआ है उन्होंने, और उसमें आपको मिलेगा। तो वो एक कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो रिसोर्सेज थे वो पेंशन में खर्च हो रहे थे, पेंशन और पेंशनर्स पे। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक बताऊं, एक बार IG रजिस्ट्रेशन हमारी बड़ी अच्छी ऑफिसर परिचित थी, सीनियर थी, तो वो दिग्विजय सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट में प्रस्ताव लाई कि इतने 40 आदमियों का अपॉइंटमेंट चाहिए, 40 आदमियों का पद निर्माण कर दिया जाए, और उसके लिए इतना खर्चा आएगा। तो फाइनेंस एज यूजुअल वॉज नॉट विलिंग टू गिव 40 पीपल, बिकॉज 40% का अगर आज खर्चा 1 लाख रुपए है, तो उसका जो पूरी लाइबिलिटी है वो बढ़ करके उस समय 5 करोड़ होती थी, और अभी इससे नहीं आ रही, इससे भी आ रही थी, अब आ रही। ओह यस, थैंक यू। अब आ रही, थोड़ी हमिंग हो रही है, इसको बंद कर दें। हेलो, हाँ, इसको बंद कर दिया, इसको जाना ओके। आप चाहे जिससे बोल सकते हैं, आप हम तो बैठ के विचार दिया और तो सब लोग दिखाई देते हैं। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, नहीं बंद, अब सुनाई दे रहा है? ये था कि इसको हम स्वीकृत नहीं करेंगे, और आप कुरियर सर्विस का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कुरियर सर्विस अच्छी होती है, और उसमें नोटिस बोले हमको इसलिए चाहिए आदमी कि इसको नोटिस जाके वो तामील कराना है। तो उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, जिसमें वो काफी नाराज हुए, क्योंकि 40 लोगों के पद निर्माण की बात थी। और अभी आप लोग नोटिस करेंगे अपने अपने ऑफिसेस में कि स्टाफ की कमी है, हर लेवल पे कमी है, पुलिस में भी बहुत कमी है, काम बहुत सारे बढ़ गए हैं,
मोबाइल और व्हाट्सएप और ये जो हमारे पब्लिक जो लीडर्स हैं उनके डिमांड्स सब मिला करके हम लोगों को बिल्कुल चैन नहीं मिल पाता है, और रात में भी आ रहा है, छुट्टी में भी मैसेज आते हैं और वो काम करने पड़ते हैं। तो स्टाफ की कमी से आप लोग सब जूझते हैं इस समय बहुत ज्यादा। और नए पद निर्माण की क्या बात करें, जब आपके पुराने पद ही खाली पड़े हों। तो अब इसमें जब मैं मंदसौर में कलेक्टर थी तो यही स्थिति थी आज से कई साल पहले, और आज भी वही सब चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि अब बहुत सोचते रहे कि कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो हम लोगों ने ये किया कि जितने अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग थे, हम लोगों ने सब सरकार से होती थी नियुक्ति, हम लोग नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, तो सबके प्रस्ताव बना के यहाँ जीएडी को भेजने लगे। तो एक परिवार जिसने आपके लिए काम किया उसकी डेथ हो गई और उसका परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है, तो आपने एक तो उसको नौकरी दिला दी, और दूसरा ये है कि आपके यहाँ जो हैंड कम था वो कम से कम मिल गया आपको। तो यहाँ पे जीएडी वाले भी परेशान हो गए, कहने लगे आप बहुत प्रस्ताव भेजती हैं। तो हमने कहा सही नहीं भेजते तो रिजेक्ट कर दो भाई। तो अगर सही नहीं, हमारा किसी से कोई पर्सनल है नहीं, तो उनका कहना था कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ तो जुगाड़े आदमी, और ये सब मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं, बाकी जो कागजों में लिखा है वो अपनी जगह है। ये जो कट मोशंस होते हैं ये बजट में, बैक टू द सब्जेक्ट, जो कट मोशंस होते हैं वो जनरली जब बजट प्रस्तुत होता है तो अपोजिशन वाले देते हैं। अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि ये स्कीम में 1 रुपए कम करो, 100 रुपए कम करो, या इतने लाख कम करो। जैसे मान लीजिए किसी सड़क के लिए आपने 2 करोड़ मांगे, जबकि उसको मालूम है कि 1 करोड़ में काम हो सकता है, तो वो कहेगा कि इसमें 1 करोड़ कम कर दो। इसको इकोनॉमी कट कहते हैं। कट मोशंस 3 तरह के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और 1 रुपए की कटौती की जाए, ये सब आप लोग देखते हैं। इसका जवाब भी देना पड़ता है, फाइनेंस आपको भेजता होगा जब कट मोशंस आते हैं बजट में। फाइनेंस बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस बिल जैसे ही बजट प्रस्तुत होता है उसके तुरंत बाद प्रस्तुत होता है विधानसभा में या लोकसभा में, और उसके अंदर टैक्सेस, जो नए टैक्सेस लगते हैं, कहीं कोई मॉडिफिकेशन है या कोई नया टैक्स है या कोई इंक्रीज इन रेट्स है, वो सब फाइनेंस बिल में आते हैं। और फाइनेंस बिल को पास करना उस दिन जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और फाइनेंस बिल को कोई रोक नहीं सकता। इतना इसका इम्पोर्टेंस है। तो देयर इज अ डिफरेंस। आप कई फाइनेंस के लोगों से पूछेंगे तो उनको डिफरेंस, एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है और एक फाइनेंस बिल होता है। कई लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता। और आप जब बजट पास होता है तो डिमांड फॉर ग्रांट्स में चर्चा होती है, कमेटीज बनी हैं, लोकसभा में भी विधानसभा में भी हर विभाग की कमेटी है, और वो कमेटी अपना उस डिमांड की डिटेल स्क्रूटनी करती है, और उसके बाद में उस पे रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करती है। तो ये माना जाता है कि दे आर द एक्सटेंशन ऑफ विधानसभा और लोकसभा, और उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर वो ब्लोटिंग हो जाता है बजट में, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे विधानसभा और लोकसभा के पास कि वो एक एक डिमांड, एक एक मांग संख्या पे चर्चा करें। तो वो इस तरह से हर मांग संख्या पे चर्चा करा के उसको पास करती है। अभी जो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है इसमें कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, मतलब देखिए क्या है कि कोई भी खर्चा आपके, कोई भी स्कीम का, जैसे मान लीजिए कि पानी देने की स्कीम है किसी शहर की, तो आप हमसे पूछिए कि कितनी जनसंख्या है, और फिर वो जनसंख्या जो है उस स्कीम पे खर्च कितना हो रहा है। उन्होंने बताया था 17 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और जनसंख्या है मान लीजिए जो भी है 3 लाख है कुछ है, तो आप उससे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस एक मोटा मोटी आपको पता चलेगी। तो उससे ये पता चलता है कि भाई 3,000 हो रहा है एक आदमी पे कि 30,000 हो रहा है।
कि 3 लाख हो रहा है। तो आप मतलब देखते से ही ये पकड़ सकते हैं कि ये स्कीम में इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं और आजकल हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि अब एआई का जमाना है। तो ग्रॉक को दे देंगे तो वो तो फौरन पकड़ के बता देगा कि आपके इसमें इतना इन्फ्लेटेड फिगर है। तो सरकार में तो इतनी सी गलती हो या इतनी बड़ी हो, प्रक्रिया एक ही है पनिश करने की। तो हम लोगों को आजकल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग यूज्ड इन द सिस्टम, हर चीज को जरा ध्यान से देखने की भी जरूरत है और हमको भी ये टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत है। और आप लोग तो यंग है तो आप लोगों को, हम तो अभी बड़े हो गए तो उस हिसाब से ये सब फिर भी सोचते हैं कि ये सब चीजें पता होना चाहिए और देखना चाहिए। आप लोगों को एज अ रूटीन ये चीजें देखना चाहिए। और एक कोई प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने बनाया है, उन्होंने पता नहीं कितने 1000 करोड़ की कंपनी बना ली अपनी। उसमें सिर्फ आपको लिखना होता है कि मुझे ये चाहिए, हाँ ये ऐप चाहिए, तो वो सब, और इसमें पेमेंट भी चाहिए, वो सारा बना के दे देता है और उसकी कंपनी काफी बड़ी हो गई है। तो वी शुड बी अवेयर एंड अलर्ट अबाउट, ये सब चीजें अच्छी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं। एक तो आपका काम इजी हो जाता है क्योंकि आप, जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट देख रही थी तो ये जो सर्विस में इनकी एक ट्रांसफर पॉलिसी होती है, उसमें लिखा होता है कि कहीं पर ये 5 साल से ज्यादा रहे तो इनका ट्रांसफर होगा, कहीं पे लिखे कि 10 से 12, 10वीं या 12वीं में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनका नहीं होगा, माँ बाप अगर बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बॉम्बे में पोस्टिंग है तो नहीं होगा। इस तरह की कई ट्रांसफर पॉलिसी के कई कंपोनेंट्स हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि उनका बच्चा 10वीं में पढ़ते ही रहता था या 12वीं में पढ़ता रहता था। कुछ लोग थे ऐसे तो सारे नहीं, बट हाँ कुछ लोग कोशिश करते थे। तो और वो जो व्यक्ति उनकी रिक्वेस्ट लेके आता था कि मेरा ट्रांसफर ना करो या करो, या मेरा सभी को बॉम्बे जाना है, सभी को दिल्ली जाना है, पुणे जाना है, चेन्नई जाना है, तो ये स्थिति रहती थी। तो वो 10 कॉपी बना के भेजता था और चपरासी से लेकर अफसर तक, मंत्री तक, सबके यहाँ वो बांट जाता था कॉपी। और जो मेरा डायरेक्टर था और जो उसके साथ एक इनकम टैक्स सर्विस का ओएसडी था, जो चेयरमैन होते हैं सीबीडीटी के, उनका ओएसडी था, वो एक कमरे में अपने को 1 महीने के लिए बंद कर लेते थे कि हम किसी से मिलेंगे नहीं क्योंकि हम ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से प्रपोजल बना रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ज्वाइन किया तो मेरा डायरेक्टर आके मुझे नहीं शक्ल दिखाया अपनी, तो आई वाज टेकन अबैक कि भाई ये काम चल रहा है, ये प्रपोजल मेरे पास भी आएगा, बट आई एम नॉट इन दी सिस्टम एट ऑल। तो मैंने सोचा ठीक है भैया तुम करो अपना काम, मैं अपना करती हूँ। तो मैंने एक इनकम टैक्स सर्विस की ऑफिसर को बुलाया, वो अच्छी थी, आईटी में थी। तो मैंने कहा देखो मैं ऐसी एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ जिसमें सारे इनकम टैक्स सर्विस के ऑफिसर अपना अपना पोस्टिंग्स डाल दें, कब से कब तक कहाँ रहे और उनका नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन है, वाइफ जॉब करती है तो कौन से डिपार्टमेंट में, सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दें। और उसके बाद में तो बोले मैडम वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो उनसे मंगा लेते हैं हार्ड कॉपी में और उसके बाद में हम उसको अपलोड करेंगे। तो मैंने सोचा 2 चीज, एक तो ये कि अपलोड जो करता है वो गलत कर सकता है और वो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। जो ऑफिसर खुद करेगा, एक तो हमारे को उतने हैंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी हो जाएगा काम, और दूसरा ये है कि वो अपना खुद का सही करेगा, नीचे उससे हम वेरिफिकेशन भी ले रहे हैं कि भाई आपने जो जानकारी दी सही थी, और फिर आप उसको चेक कर लो अपने ऑफिस रिकॉर्ड से, और अगर कोई गलत डेटा है तो उसको फिर पनिश कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो हार्ड कॉपी पे है, हमारा मतलब सॉरी सॉफ्ट कॉपी में है ही, उसी ने अपने वेबसाइट से दिया, अपने आईपी एड्रेस से दिया।
तो हमने ये इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा मैडम वो कहेंगे हमारा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, जबकि नहीं पढ़ रहा होगा। तो हमने कहा देखो ऐसा है, इस साल 10वीं में पढ़ रहा है, कम से कम वो तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम अगले सालों से तो उसको हम 11वीं में पहुंचा ही देंगे, अनलेस कि वो फेल हो गया तो दिखाए अपनी मार्कशीट। तो ऐसे करके हम लोगों ने वो वेबसाइट बनाई, और ये हमारे महान लोग जो हार्ड कॉपी पे काम कर रहे थे वो 1 महीने तक बंद करके कर रहे थे, ठीक है। तो हमने अपना अलग सिस्टम बना लिया, और उसके बाद में लैपटॉप लेके जाते थे अपने सीनियर्स के कमरे में, और वहां पे उसी लैपटॉप से उनका देख लेते थे कि इसका पॉलिसी में आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से उसका करना है नहीं करना है। अब ये बैठे हुए हैं अपना ना, मिलने भी नहीं आए। तो एनीवे, सो उसमें ये तक हुआ कि जो हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर चिदम्बरम थे, तो वो क्या करते थे कि जैसे कोई चीफ मिनिस्टर तक जाते हैं इनकम टैक्स सर्विस के लोगों के ट्रांसफर कराने और रुकवाने। तो कोई चीफ मिनिस्टर उनके यहाँ कोई घर पहुंच गया होगा या देर सवेर आ गया, तो वो ये जानते थे कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है। तो मेरे पास उनके पीएस का फोन आता था कि मैडम सो एंड सो के बारे में बताइए कि ये कहाँ आ रहे हैं। तो एक आदमी 16 साल से वहीं पे था, और उनका ट्रांसफर रुकवाने वो चीफ मिनिस्टर पहुंचे थे। तो मैंने कहा भैया ये तो 16 साल से यहाँ है, इसलिए इसका ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये तो है लिस्ट में। तो फिर उन्होंने उनको जवाब दे दिया। तो पर बात यह है कि ऑफिस आवर्स के बाद रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे, रात को 2 बजे कभी भी आप इंफॉर्मेशन मांगे, आई कैन ओपन दैट इंफॉर्मेशन एंड कैन गिव इट। तो ये सारा जो सिस्टम था, वो नीचे तक जो बैठे थे वो सब रिडंडेंट हो गए, मतलब उनकी थोड़ी इम्पोर्टेंस भी कम हो गई। पर हमारा काम ये तो है नहीं कि उनको इम्पोर्टेंस देना और उसके चक्कर में डिले हो और उसके बाद में करप्शन हो। तो जो डिजिटाइजेशन है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आप काम करते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है इस देश की और अपने लोगों की भी। क्योंकि आज आप नौकरी में हैं, अब हम जब रिटायर हुए तो हम कई चीजें बोलते हैं कि अरे यार ये क्या कैसे करते हो तुम लोग। तो पता चलता है कि जब हम थे तब हम भी यही करते थे, मतलब सुनते नहीं है ना। ऊपर से कहीं से हम बोलेंगे तो बोलेंगे तो रिटायर्ड अफसर हैं, ये तो बोल रहे हैं, इनका तो काम ही है, इनके पास फालतू टाइम है इसलिए ये हमसे कह रहे हैं। बट जब आप टेबल के उस तरफ बैठे हैं तो चीजें अलग दिखाई देती हैं। जब टेबल के इस तरफ बैठते हैं तो हम उसी को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ऊपर से किसी ने कह रखा है या सरकार का है तो बोल भी नहीं सकते ना। तो जैसे निशातपुरा का मैंने बताया आप लोगों को, तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम अभी ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, पर हमारे हिसाब से ये आपको पहले देखना चाहिए था। तो जैसे पीएमएफएस भी जो सिस्टम है, पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें इन्होंने डिजिटाइज कर ली। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स पे इनको तो अवार्ड भी मिला है कि प्रॉपर्टी टैक्स आप वेबसाइट के थ्रू डिजिटाइज तरीके से जमा कर सकते हैं। पर यहाँ पर कई साइट्स ऐसी हैं जो कहते तो हैं कि है हमारे पास, परंतु उतने अच्छे से चलती नहीं है। और या फिर उसमें कोई नंबर दिया है कि आप इस नंबर पे फोन करिए तो आपको ग्रीवेंस में मतलब ये सब जगह होता है कि जो नंबर दिया होगा वो नंबर पे कोई उठाएगा नहीं, उठाएगा तो ठीक से जवाब नहीं देगा, और इसलिए या तो हमें नंबर देना नहीं चाहिए, और अगर दिया है तो उसका प्रॉपर कोई जवाब दे। तो हम लोग थर्ड पार्टी को दे देते। जैसे हम लोगों ने एक जब अपने प्रधानमंत्री जी शुरू में आए थे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू करी थी। तो उसमें यही था कि जिनकी कोई क्वेरी हो तो वो किससे बात करें। तो पंजाब नेशनल बैंक वालों ने कहा कि हम एक मतलब एक उन्होंने साझा कंट्रोल रूम बनाया था कि ये नंबर पे हम लोग करेंगे। तो मैंने और हमारी सेक्रेटरी दोनों ने फोन करके उनको चेक किया कि वो क्या जवाब देते हैं। तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि जिनको बिठाया था वो कहने लगे कि साहब हमें बोला तो है कि यहाँ पे फोन अटेंड करना है, पर किस प्रश्न का क्या जवाब देना है FAQ बना के नहीं दिए हैं ठीक से। तो या कोई भी सिस्टम आप बना रहे हैं तो उस सिस्टम में यूजर से बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर जैसे कि
काउंसलिंग है। काउंसलिंग में कई बार लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि हमने तो ये कॉलेज भरा था, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, और हमको ये मिल गया। तो उसमें कई बार आता है, स्क्रीनशॉट आता है, जैसे कि आप टिकट बुक कराते हैं उसमें भी आता है कि भाई फ्लाइट T1 दिल्ली में जाएगी और ये है, आप अपना नाम एक बार ठीक से देख लीजिए, नाम की स्पेलिंग में गलती तो नहीं है। तो ये आपके सेविंग के लिए होते हैं। कल को कुछ गलती हो जाए तो आपको ये कह सकते हैं, हमने इसको 2 बार पूछा था, 2-3 बार पूछा कि कंफर्म कंफर्म कंफर्म, पर वो नहीं उसने कंफर्म तो किया पर देखा ही नहीं ठीक से, पढ़ा नहीं उस चीज को। तो एक बार चलिए उसने ओवरलुक कर दिया होगा, तो दूसरी बार तो पढ़ लेता, तीसरी बार पढ़ लेता। ऐसे करके उन्होंने हर सिस्टम में जितना नुकसान होने की संभावना है उस हिसाब से उसके स्क्रीनशॉट्स बनने चाहिए और यूजर की दृष्टि से उसको देखना चाहिए। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में भी मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बता रही हूँ, इसको मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है। वैसे तो खैर ओवरऑल है, ये आपके मतलब का नहीं है जब तक आप फाइनेंस में काम ना करें, पर फाइनेंस कमीशन भी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अमाउंट देता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से प्रपोजल जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पढ़ी हूँ यहाँ पर MLB कॉलेज भोपाल में, और MLB कॉलेज में मैं कुछ करना चाह रही थी कि मैं थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यहाँ पर स्टेट में कुछ साल 2007 में। तो गवर्नमेंट से बजट में था नहीं कुछ, तो उस समय प्लानिंग कमीशन करता था प्लानिंग, अभी तो नीति आयोग हो गया। इनफेक्ट फाइनेंस कमीशन से भी आप डिमांड कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्टेशन का आप फाइनेंस कमीशन से कर सकते हैं, वैसे ही नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में उस समय एक फंड होता था, बट एक मतलब उनके पास एक सेविंग होती थी जिसमें से कि वो ऐसे छोटे छोटे प्रपोजल को ओके कर सकते थे। तो वो चूंकि मुझे पता था, तो मैंने 5 लाख रुपए MLB कॉलेज को लमसम ग्रांट दिलाने के लिए वहां पे प्रस्ताव भेजा था। तो 5 लाख रुपए इनको मिले, 5 लाख फिर ये हुआ कि भाई खाली MLB कॉलेज को ही क्यों, तो फिर हमें हमीदिया कॉलेज भी जोड़ दिया। तो इस तरह से ये दोनों कॉलेज को 5-5 लाख रुपए उस समय मिले थे। तो ये केवल हमारे दिल की एक इच्छा थी कि उस कॉलेज में पढ़े हैं तो उसको हमें कुछ देना चाहिए, अदरवाइज तो इस बेसिस पे तो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं देता कुछ, और वो मतलब टाइड अप फंड होता तो उनके प्रिंसिपल के पास नहीं होता। वो प्रिंसिपल को मिला के प्रिंसिपल ने जैसे टॉयलेट्स वगैरह ठीक कराए, कोई बाउंड्री वॉल ठीक कराई, तो उनके ऊपर था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उसका एक्सपेंडिचर का खर्चा देने। तो इस तरह के भी फंड्स हमको पता करके रखने चाहिए। इनफेक्ट पहले फोर्ड फाउंडेशन हुआ करती थी, अब तो शायद बंद हो गई। भारत सरकार में भी कई ऐसी एजेंसीज हैं जो कि आपको फंड दे सकती हैं इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब कौन कौन सी है वो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगी, वो आप AI ऐप में डालेंगे तो आपको मिलेगा। कोपायलट है, जेमिनी है, उन सब में आई होप आप लोग सब यूज करते होंगे ना, सब ज्ञान को तो सब यूज करते होंगे, है ना। ये PMFS सिस्टम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसमें जितना फंड ट्रांसफर होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके रिसोर्सेज इतने हैं और इससे आप एक्सीड नहीं कर रहे हैं और इतना खर्च हो रहा है। तो ये पूरे स्टेट के फंड्स को और सेंट्रल के फंड्स को रखने के लिए होता है, को असिस्ट करने के लिए होता है। भारत सरकार में तो एक डिपार्टमेंट है AAAs, सेंट्रल एड अकाउंट्स एंड ऑडिट, AAA करके एक, वो तो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। वो तो इवन लोकसभा के क्वेश्चन, राज्यसभा के क्वेश्चन में भी अगर कोई बहुत लंबी चौड़ी जानकारी मांगता है, कहाँ खर्चा हुआ, किसने किया, तो वो तो वेबसाइट का वो लिंक पकड़ा देते हैं, लिख के भेज देते हैं कि इस लिंक पे देख लो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी वो कागज चल रहे होंगे ना जिसमें लंबी लंबी जानकारी भेजी जाती है। पर चूंकि सबके पास सबको कंप्यूटर मिला हुआ है और सब वेबसाइट से देख सकते हैं, तो वो लिंक पर लिखना पड़ता है क्योंकि इसमें ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए
अच्छी बात है वो। इतने पेपर्स की बचत होती है तो इतने लकड़ी बचती है, इतने पेड़ बचते हैं। हम लोगों को आगे तक का देखना चाहिए। मैं एक स्टोरी पिछले सेशन में सुना रही थी कि एक स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया गया और बच्चों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि अंदर कलर्स रखे हैं और पेपर रखा है, आप इस पे ड्राइंग करिए, कुछ नेचर से रिलेटेड ड्राइंग करिए। तो जब तक बच्चे पहुंचे तब तक वहां सिर्फ काला रंग बचा था, क्योंकि जो पेरेंट्स आए थे उन्होंने नीले से नदी बना दी थी, हरे से पेड़ बना दिए थे, ब्लू से आकाश बना दिया था। और जब सारा रंग खत्म हो गया तो बच्चों को सिर्फ काला रंग मिला। उन्होंने काले रंग से ही नदी बनाई, काले रंग से ही पहाड़ और काले रंग से ही आकाश। तो दिस इज दी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक जताने वाली बात है, समझने की बात है। और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो, मतलब थोड़ा सा प्रीचिंग कर रही हूँ मैं आपको बट अगर दिमाग में रहे तो अच्छी चीज है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करें। मतलब हम अपने कामों के अलावा भी क्या करें। जैसे मैं तो चूंकि लोकसभा में रही हूँ, सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो उनको जानती हूँ, तो एक मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं उनसे पूछ रही थी कि आप जो फंड मिलता है उनको, एमपी डेवलपमेंट फंड, एमएलए डेवलपमेंट फंड, उसमें से वो कंस्ट्रक्शन ही काम कराते हैं, सड़क बना रहे हैं, उसमें तो और पेड़ कट जाते हैं, स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल की सड़क, एडिशनल रूम्स बना रहे हैं। पर आगे आने वाली जनरेशन के लिए आपने क्या किया? आपने सोलर एनर्जी में कुछ किया क्या? आपने कोई प्लांटेशन करवाया क्या? प्लांटेशन कोई नहीं कराता इस पैसे से, क्योंकि प्लांटेशन का वो सोचते ही नहीं है। तो मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा, जो मतलब जैसे कि शशि थरूर जी से, या अनुराग ठाकुर, या राहुल गांधी, या सोनिया गांधी, इन्हीं का मैंने वो पूरा फंड निकाल के, वो एक डिपार्टमेंट है वहां पे होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट, उसमें डिटेल पड़ी रहती है कि कौन से एमपी ने किन किन कामों के लिए पैसे दिए हैं, तो वो उसमें आ जाता है। तो थोड़ा सा अपडेटेड कम रहता है, पर फिर भी पिछले साल का तो मिल गया। तो उसमें से देख करके फिर मैंने उसको डाला। तो फिर उसपे से मेरे पास फोन आया कि ये आप क्या कर रही हैं? तो हमने कहा भाई हम तो आपको जलाने के लिए रोज कर रहे हैं, अब जल गए तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी भाई हमारा काम तो केवल यही, हमारे पास तो है नहीं पैसा कि हम करें, पर जो भी करें, जैसे कि क्रेडिट, ये जो इंदौर में एक सीवेज सिस्टम बना, सीवेज प्लांट बना है, उससे जो कार्बन क्रेडिट्स मिले, वो हमारे यहाँ की एक ऑफिसर ने पहली बार पूरे इंडिया में वो कार्बन क्रेडिट्स लंदन के इंटरनेशनल मार्केट में सेल किए, और स्विट्जरलैंड की एक कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी ने वो खरीदे हैं अगले 25 साल या 35 साल के लिए। हर साल इंदौर नगर निगम को 9 करोड़ रुपए वो देगा, वो कंपनी, क्योंकि उन्होंने उनके कार्बन क्रेडिट खरीदे हैं। तो उसी तरह से कई देशों में लैंड इज ऑल्सो यूज फॉर कार्बन क्रेडिट्स। जैसे हमारे यहाँ हर लैंड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर, तो आगे जाके लैंड से हम कार्बन क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे घर में कोई पेड़ लगा है, छाया दे रहा है, गंदगी कर रहा है, तो उसको कटवा दिया, या खेत में है तो ठीक से फसल नहीं हो रही है तो कटवा दिया। तो हमारे कार्बन ऐसी बात हो रही थी कि क्या हम इंडिविजुअल व्यक्ति का सोलर प्लांट या सोलर पैनल जो घर पे लगती है और जो उसके घर में पेड़ लगे हैं, क्या उसको कार्बन क्रेडिट के रूप में एग्रीगेट करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर क्या उस इंडिविजुअल को पैसा मिल सकता है क्या? तो ये पता चला कि इंडिविजुअल का की श्योरिटी नहीं रहती। सरकार की तो ये श्योरिटी है कि जहाँ सीवेज प्लांट बना है वो रेयरिटी होगी कि वो सीवेज प्लांट को तोड़कर वहां कुछ और बिल्डिंग बना लें, पर इंडिविजुअल के साथ में 25 साल या 35 साल का एग्रीमेंट करना मुश्किल होता है। पर एग्रीगेटर ये काम कर सकता है, ये भविष्य का काम है, और अब आगे कैसे चलता है, पर हाँ देयर इज अ थिंकिंग अबाउट इट, और विदेशों में होता भी है। अभी आप अगर इंटरनेशनल टिकट बुक करने चलेंगे तो आप देखेंगे कि हर एयरलाइन जो विदेशी है, पता नहीं अपने यहाँ की भी एयर इंडिया भी करती होगी,
तो वो पूछती है कि क्या आप इतना एडिशनल पैसा हमें कार्बन क्रेडिट के लिए देना चाहेंगे क्या? तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए कि नहीं, हम नहीं देना चाहते, तो उसको खुद अपने फंड में से देना पड़ेगा। पर विदेशों में ये है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है लैंड पे, एयर में या आकाश में, तो उसके लिए आपको कार्बन क्रेडिट्स का खरीदने पड़ेंगे या पैसा जमा करना पड़ेगा। तो ये आगे का भविष्य का ये काम है जो हम सबको ही करना पड़ सकता है। पर आप जो भी काम करें आसपास देख लें कि हम क्या ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या? क्योंकि हमारे ही बच्चे और बच्चों के बच्चे उसका फायदा लेंगे, नहीं तो वो काले कलर से ही सब कुछ उनको करना पड़ेगा। ऑडिट का जैसा आपको पता होगा कि सीएजी करता है, और सीएजी हमारा इंटरनल ऑडिट भी होता है, हर ऑफिस का इंटरनल ऑडिट होता है और हर कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट होता है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट सीएजी कराता है वो तय करता है कि कौन करेगा। मेरे पास अब 7 मिनट है, मैं 7 मिनट के बाद बंद करूंगी, आप लोग प्रश्न पूछोगे आप लोग को भी तो कुछ पूछना होगा ना। तो सीएजी का अभी जैसे एक राजेश एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा स्कैम सामने में आया है, अगर आप लोगों ने पेपर में पढ़ा हो। एक तो आप लोग ना पेपर चाहे भले ही आप ऑनलाइन पढ़िए, पर इकोनॉमिक टाइम्स टाइप पेपर जरूर पढ़िए। ये जो खबरें आती हैं कि इसने इसको मार दिया और ये है वो तो अलग है, बट देश में क्या हो रहा है, कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है, ये अच्छी चीज है। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, घर में पेपर होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक टाइम्स से भी आपको मिले या उससे रिलेटेड कोई भी पेपर्स हो तो जरूर पढ़िए। तो एक राजेश एक्सपोर्ट्स का कोई वो गोल्ड में डील करता था, उसका बहुत बड़ा स्कैम आया है, बहुत सारे बैंक्स को उसने चूना लगा दिया टाइप है। तो ये सीएजी ये सेबी के यहाँ ऑडिट में पकड़ा गया है व्यक्ति। तो ऑडिट देखा जाए तो, और ये कई सालों से बदस्तूर चल रहा था, और ऐसे फॉरेंसिक ऑडिट होते हैं, बैंक में होते हैं, कंपनीज में होते हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उसमें होते हैं, और उसमें जो चीजें निकल के आती हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि लोग किस हद तक मिसयूज करते हैं पोजीशन को या फाइनेंसेस को, हमारे पब्लिक फाइनेंसेस को। तो जहाँ भी ऑडिट का कोई पैरा आया है, उस पैरा को निपटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बीइंग अ फाइनेंस पर्सन आई नो कि उससे बहुत सारी चीजें आपको भी पता चलती हैं, और स्टेट का भी हित होता है क्योंकि उसमें पकड़ में आता है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है, नहीं तो लोग कहते हैं कि सरकार में तो ऐसे ही होता है, हम लोग भी कहते हैं, हम लोग इतने सीनियर होने के बाद भी कई बार हाँ गवर्नमेंट कहते ऐसा होगा। ये जो आपको मैंने बताया आउटकम बजट सब जगह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है और स्टेट में भी होता है। उसमें आप देखिए कि जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें कितना प्रूडेंस है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ इन्फ्लेटेड तो नहीं है। ये आप अपने विभाग का देखिए, दूसरे विभाग के में अब उसकी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। एक तो इसमें शिकायत की बात आई तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने नौकरी में एक सीखा है कि ना अपने बड़े की शिकायत करो ना छोटे की शिकायत करो, उससे कुछ नहीं होता, आपको ही टेंशन होता है। और जो भी है खुद ही निपटाओ, इतना कुव्वत रखो कि खुद निपटाने का जो भी करना है आप ही करो, किसी को कहने से नहीं निपटेगा। तो मेरी ओर से खत्म है। अब आप लोग के पास आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नॉट रिलेटेड टू बजट, कोई भी जो आपको लगता है।
पूछने पड़ेंगे ना। तो पहले आप ही पूछिए। पुलिस की जॉब, लेट मी टेल यू, अभी एक सीरियल आ रहा था, वो हम देख रहे थे, पेड्रो हाँ, तो प्रीतम एंड पेड्रो, हाँ, तो उसमें वो बता रहे हैं कि पुलिस की नौकरी में इतना मतलब घर में हो जाता है कि वाइफ ही आपको शक करने लगे, या वाइफ ही आपको छोड़ दे कि हमको टाइम नहीं दे रहे, हमारी बर्थडे नहीं मना रहे, बच्चे की बर्थडे नहीं मना रहे। तो पुलिस की जॉब बहुत डिफिकल्ट है, और जो इनका परसेप्शन है वो भी झेलना पड़ता है, कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सुनेंगे नहीं, या मिल जाएंगे किसी से, या करप्शन करेंगे, डिले होगा। तो ये सब चीजों को कैसे हैंडल करते होंगे आप लोग, ये सब तैयार, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और ट्रांसफर के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जहाँ करते हैं कोई बात नहीं है। मुझे तो स्कूल एजुकेशन में से मुझे ट्रांसफर किया कि कल्चर डिपार्टमेंट में कर दिया, उसी में 1.5 साल से थी मैं वहाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांसफर हो रहे थे टीचर्स के, तो ऐसा आपको पता ही होगा, घर में भी कई लोग होंगे, तो ट्रांसफर का वहाँ पे बहुत सारा होता है, कई हजारों में ट्रांसफर होते हैं। तो जो डेट थी वो 30 जून ट्रांसफर पॉलिसी में होती है कि 30 जून तक कर दें, तो उसको खत्म होने में हफ्ता 10 दिन बचा था। तो हम लोगों ने जो ट्रांसफर पॉलिसी है सरकार की, जीएडी की, उसके हिसाब से जब नंबर निकाले तो 35 लोगों का ट्रांसफर हो सकता था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, प्रपोजल बना लो, हमारे हिसाब से ये तैयारी है, पर कहाँ इसमें रुकने वाले हैं, तो उनको तो लिस्ट चाहिए पूरी। उन्होंने कहा कि अब 30 जून तक कैसे होंगे मैडम, आपने तो ट्रांसफर नहीं किए। तो क्या कर देंगे, बोले आप 30 जून तक कर देंगे, हमने कहा हाँ कर देंगे। तो बोले कैसे करेंगे, तो हमने कहा हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जिन जिनको ट्रांसफर कराना है वो सब सुभाष स्कूल के हॉल में इकट्ठा हो जाए, वहां हम कंप्यूटर लगाएंगे, और ये प्रायोरिटी रहेगी कि कोई विडो है, कोई सिंगल है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। 5-6 ऑप्शन दे वो कि कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, और सबके सामने हॉल में बैठकर सबके सामने ट्रांसफर होंगे, और रात के 12 बजे के पहले वो ट्रांसफर ऑर्डर चढ़ जाएगा, उसको देख के लोग ज्वाइन कर लें जिसको जहाँ जाना है। तो अब वो टाइम लिमिट थी, तो मैंने कहा उसके बिना तो हो नहीं सकते ये पहले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे कर लो। हमने कहा भाई शर्त ये है कि 12 बजे के पहले जो फाइल हम बना के भेजेंगे उस पर साइन हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 के बाद 30 जून की 12 के बाद तो 1 तारीख आ जाएगी, तो हम नहीं करेंगे। तो उनका कहना था कि ठीक है हम कर देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर्स लगाए, और मेरे जो कमिश्नर थे वो बड़े अच्छे थे, उन लोगों ने सब व्यवस्था कर दी, और वहाँ पे लोगों को 3 दिन बाद बुला लिया। ट्रांसफर ऐसी चीज है वो, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से सब तक पहुंच गई, सब लोग आ गए। फिर उसमें 7 प्रायोरिटी वाले कैटेगरी बनाई, और वहाँ पे बताया कि अब ये वैकेंसी है, तो उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा करके वो पूरी लिस्ट शाम तक तैयार होगी। 3 दिन चले वो, और 3 दिन में वो लिस्ट बनी। अब वो फाइल चली गई, अब वो फाइल लौटे ना, 11 बज गया, 11:30 बज गया। फिर कमिश्नर साहब का फोन आया, कहने लगे मैडम फाइल तो हम सब जग रहे हैं, ऑफिस में ही बैठे हैं, गए नहीं गए। अब वो वहां से फोन आया कि मैडम फाइल तो लौटी नहीं अभी। तो बाई चांस मिनिस्टर साहब हमारे घर के पास ही रहते थे। अब बीइंग अ वुमेन ऑफिसर थोड़ा सा लगता है कि रात को 11:30 बजे किसी के घर जाना, और ज्यादातर ऑफिस घर से ही चलते हैं मिनिस्टर्स के। तो मैंने सोचा कि चलो रात को 11:30 बजे मैं पैदल चल के, उनका घर पास में था, मैं पैदल चल के उनके घर गई, और वहां पे गार्ड को मैंने कहा कि वो फाइल लेने आई हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने जाके बताया, पहचानते तो थे, उन्होंने जाके बताया। तो खैर
उन्होंने कहा कि फिर उनका ये प्रश्न था कि फिर हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे लोग जो ट्रांसफर हमारे भाई मैडम सिस्टम में वो भी तो करना चाहते हैं। तो हमने कहा मैडम देखिए ऐसे है कि ये तो कर दीजिए, अब तो ये तो बात हो गई, अब तो निकल गई गोली, अब तो ये तो कहीं ना कहीं जाके लगेगी ही। अब आप इसके बाद जो करने होंगे वो हम बाद में आपके देख लेंगे। तो उनको मैंने बताया कि देखो 3% एट्रिशन होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, 3% लोग रिटायर होते हैं। तो जैसे 1 लाख टीचर्स हैं, उसका 3% अच्छा खासा नंबर है ना। तो हमने कहा इतने जगह खाली होंगी और उसमें जो आपके लोगों की होंगी वहां पे देख, अभी तो ये जो लार्ज स्केल है इसको निपटा देते हैं। तो पर देखिए आपको लॉजिक बताना पड़ेगा, ऐसा जो कन्विंसिंग हो। अगर वहां आप लड़ने लगे कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते और ये है तो नहीं। अब ये बात भी सही है कि भाई अगर मेरे कोई परिचित हैं और वो कह रहे हैं कि सहता जरा देख लेना, मेरा बैचमेट है वही कह रहा है कि यार देख लो मेरा इसका है थोड़ा सा, तो मेरे पास भी लिस्ट है। तो मैंने उनको बताया है कि मेरे पास भी ऐसी लिस्ट है, ऐसा नहीं है, पर अभी तो सबके सामने जो हुआ है वो ही करेंगे। तो फाइल मुझे मिल गई 11:15 बजे। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे छुड़वा दिया, जबकि वो पास में ही था। बोले नहीं रात के समय आप अकेले नहीं आइए, और यही बहुत था कि रात में हम चले गए अकेले पैदल चल के। तो कई चीजें ऐसे करनी पड़ जाती हैं जो कि लीक से हटकर हो, ये सामने वाला एक्सपेक्ट ही ना करे कि ये भी हो सकता है कि रखे रहेंगे फाइल तो क्या होगा। तो आप लोग को मतलब काफी इंटेलिजेंट होके काम करना पड़ता है सरकार में, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है, कई बार हारना भी पड़ता है, कई बार अपने मुद्दे को नहीं कर पाते तो उसको बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए, अपनी ओर से प्रयास पूरे करने चाहिए। बाकी ये है कि ये हमारा किंगडम तो है नहीं, और ठीक है हमने पूरी कोशिश करी और नहीं हुआ। तो हर चीज के लिए बड़ा सोच करके कि कैसे करें कि ये काम इस तरह से हो जाए और जो सही हो और जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो। अपने काम को आप 100% मान के चलिए, उसमें से आपके 50% तो आप अपनी फैमिली को दे दीजिए कि भाई फैमिली में सब खुश है, सब ठीक से चल रहा है। फिर 10% ये है, फिर 10% बॉस है, 10 मतलब हर एक का परसेंटेज है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि करीब करीब 30% आप खुद कर सकते हैं। मतलब पूरे 100% में से 30% काम आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, और वो आप ही के ऊपर है कि आपने वो काम ढूंढ लिया और आपने कर दिया। जैसे मुझे जब स्कूल एजुकेशन में ये सब हो गया तो उसके बाद मुझे वहां से शिफ्ट कर दिया गया कल्चर, क्योंकि पसंद तो नहीं आएगा किसी को, ठीक है डजंट मैटर। तो कल्चर में चले गए। कल्चर में भारत भवन अब बैठे हैं वहां, तो इतना काम नहीं है, स्कूल एजुकेशन में तो बहुत काम था, सब लोग देख भी रहे हैं तो डंप हो गए टाइम पे ना। तो अब डंप हो गए तो अब ठीक है। फिर भारत भवन गए तो भारत भवन में देखा कहीं से लीकेज हो रहा है, कहीं पे अच्छी पेंटिंग लगी है उसमें खराबी हो रही है। तो लकीली फाइनेंस में मैं काम कर चुकी थी, मैं गई वहां से 5 करोड़ लेके आई भारत भवन के रिपेयर के लिए। और मैंने कहा ऐसे ही आप अगर आप नहीं देंगे तो मैं तो जाने वाली थी यहाँ से, क्योंकि मेरे भारत भवन में सारी आर्ट की चीजें खराब हो रही हैं। तो क्योंकि इसके ट्रस्टी सेक्रेटरी होते हैं कल्चर वाले, और जो बजट हमारा 4-5 लाख था कल्चर डिपार्टमेंट, उसके सैलरी वैलरी का था, वो बढ़ करके 50 करोड़ हो गया। और अभी आजकल तो और भी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट में कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जब मेरा भारत सरकार में ट्रांसफर हुआ तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में पोस्टिंग दिया। पहली बार जस्टिस डिपार्टमेंट में पब्लिक से जुड़ी हुई स्कीम शुरू हुई। नहीं तो जैसे कि लीगल एड, जैसे कि न्याय बंधु, न्याय मित्र, ये सब उस समय 3 बनाई थी मैंने, एक मैं नहीं कर पाई थी।
और मेरे समय शुरू नहीं हो पाई थी, कुछ उसमें दिक्कत आ गई थी, बट 2 मैंने अपने समय में शुरू कराई थी। एक लीगल एड वाली, जिसमें कि नालसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट से मैं पैसा लेके आई थी, क्योंकि हमारे बजट में नहीं था पैसा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे रिक्वेस्ट करके और उनसे लेके आई थी, तब जाकर के। तो बैठे बैठे सोचते रहते थे कि कैसे करें, कहाँ से पैसा ला सकते हैं, कौन देगा, कौन सुनेगा। तो ऐसा जब आप डिवोशन से करेंगे तो फिर इस तरह की चीजें निकल के आती हैं। और बैचमेट्स बहुत मदद करते हैं। अब जैसे आप लोग इकट्ठा यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो सबका नंबर आपके पास होना चाहिए। कभी जॉब में कभी कहीं जाना हुआ तो वहां जाकर के आप उसको मिल सकते हैं, आप उसके थ्रू कोई ऑफिशियल काम है, पर्सनल काम भी है, वो भी करा सकते हैं। बट ये है कि ऐसा ग्रुप, हम लोग के बैच में क्या होता है, हम लोग IAS वाले सब इकट्ठा एक बार फाउंडेशनल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके बाद में हम लोग जहाँ भी रहे, कोई केरला रहता है, कोई आसाम रहे, कहीं है, तो फोन करके बैचमेट के थ्रू ही अपना टूरिज्म भी कर लेते हैं और बैचमेट के थ्रू ही काम भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आपके ऑफिस में या आपके क्षेत्र में कोई सीनियर ऑफिसर आया है, उसमें आपको राइजिंग के लिए लगा दिया। कई लोग बहुत उसके लिए वो करते हैं कि मुझे क्या यहाँ कर दिया टाइप, यू नो। but that is such a good opportunity to meet the senior officer, learn something from them, and later on if you need any help in your service career, actually you can take help from them. Not that transfer maybe, but otherwise also. क्योंकि ये क्या है, परसेप्शन बनता है लोगों की बातों से। कहीं बैठे हुए हैं, अचानक किसी ने बोला अच्छा वो फलाने अफसर का हम सोच रहे हैं यहाँ करने का। अच्छा था, हाँ मैं उससे मिला था वहां पे, अच्छा अफसर है। अब अच्छा अफसर कितनी देर आप उससे मिले होगे, आधे घंटे या एक दिन या एक रात, तो उसमें वो इम्प्रेशन बना के गया कि आप अच्छे हैं, तो वो कहीं कहाँ काम आ गया आपको। तो ये सब चीजें हम उस समय को इतनी छोटी सी चीज मान के नहीं बैठे। मैं यहाँ पे पोस्टेड थी एडिशनल कलेक्टर भोपाल गेस्ट ट्रेजिडी जब हुई थी यहाँ पे 84 में, तो 85 में मुझे और मेरे बैचमेट को, एक को रिलीफ दिया था, एक को रिहेबिलिटेशन। ये प्रकाश शाह भोपाल गेस्ट ट्रेजिडी पे फिल्म बनाने आए थे और सत्यम साहब हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रकाश झा हैं, ये फिल्म बनाएंगे, इनको मदद करनी है। अब वो प्रकाश झा तो प्रकाश झा ही थे फिल्म बनाने वाले, तो वो कहें कि हमारा जो कैमरा उठाने वाला भी है वो भी हमारे साथ ही खाना खाएगा, हमारे जैसे कमरे में रुकेगा, और ऐसे कर दो, ये यहाँ से बिजली की तार हटवा दो, ये यहाँ से नदी हटवा दो, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती थी। तो मैंने सोचा कि इनको, तो मैंने एक हमारे डिप्टी कलेक्टर थे उनको लगाया, तो वो तो शाम को आए मेरे पास, कह रहे हैं मैडम मैं नहीं कर सकता। इनकी डिमांड्स तो बड़ी अजीब अजीब सी हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम कहने दो। फिर एक और डिप्टी कलेक्टर थे, तो एच.एस. त्रिवेदी हैं, अब रिटायर हो गए वो डिप्टी कलेक्टर, अब तो IAS में आके फिर रिटायर हुए। तो वो बढ़िया, मैंने कहा ये कर लेंगे, तो मैंने उनको लगा दिया। तो जब वहाँ कहीं शूटिंग चल रही थी, कोई हमारा वो रिहेबिलिटेशन शेड था जहाँ पे सिलाई विलाई का काम जो अफेक्टेड लोग थे उनसे कराते थे, तो वहाँ गए तो आराम से अपना लॉन पे बैठे हुए जमीन में और वो अपना काम करे। फिर उन्होंने कुछ कहा कि ये हटवा दो, तार हटवा दो, तो उन्होंने कहा यस सर। और हटे कि नहीं हटे वो बात की चीज है, बट ही डिड आर्ग्यू विद हिम, एंड वो बड़े खुश थे उनसे, और ये भी आराम से उनके साथ लगे रहे। और वो फिल्म एक जो भोपाल गेस्ट ट्रेजिडी पे प्रकाश झा ने बनाई है, वो हम लोगों के समय बनी थी, और सत्यम साहब थे उस समय। तो इस तरह की जो चीजें होती है उससे मतलब देखा कि मतलब त्रिवेदी जी से मैंने पूछा, मैंने कहा उनको तो बहुत तकलीफ हुई, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता। तो बोले अरे मैडम कुछ नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है,
जमीन पे बैठे जमीन में बैठ जाएंगे, खड़े होने को बोलेंगे खड़े हो जाएंगे। और तो ये क्या है कि थोड़ा हम्बल बन के रहने में मैंने देखा कि लोगों को ज्यादा फायदा होता है। कई जगह आपको ऐसे डफर जैसा भी बिहेव करना पड़ता है, जैसे सामने वाले से आपको मतलब क्या है कि नौकरी में स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल स्टडी भी बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें क्या है कि कई जगह अगर आप जैसे थोड़ा सा अपने आप को कम बता दें, जैसे इंटरव्यू में, आई डोंट नो लाइक यू मस्ट हैव नोटिस्ड, इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू लेने वाले से अपने आप को ज्यादा दिखाएंगे तो आपको शायद उतना नंबर नहीं देगा। तो वहां पे तो आपको मतलब ठीक है, आपको नॉलेज है, अपनी नॉलेज बता दो, परंतु बताने का एक तरीका होता है और तरीके से आप यू कैन विन द सिचुएशन। ऐसे ही नौकरी में कई बार सामने वाला बड़ी बड़ी भाग रहा है और आपको सोच रहा है कि इसको तो कुछ पता नहीं है, तो फिर आप ऐसे में क्या करोगे? तो आप कहते हैं हाँ ठीक है भाई, नहीं पता है, इट्स ओके। फिर बाद में जब आप उसे बेहतर करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ हमने इनको सही नहीं आंका था, तो वो जाने। खैर तो यस। हाँ मैडम, एज यू डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसफर पॉलिसी एंड और आप सेंट्रल और स्टेट दोनों में वर्क भी किए हैं, तो मैम दोनों के ट्रांसफर पॉलिसी में एज अ वेलफेयर स्टेट हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हमने करप्शन ऑलमोस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स एंड, बट सेंट्रल का जो ट्रांसफर पॉलिसी है बड़ा फेयर है। मतलब जैसे आपने एक बच्चा 10th में रखा, जैसे तो वो 10th में आप 11th में जाएगा तो वो डिटेक्ट हो जा रहा है आपको सेंट्रल में, पर स्टेट में अगर कोई बच्चा 10वीं में है तो वो 10 साल तक 10वीं में ही रहेगा। मतलब तो हम इन चीजों को स्टेट में क्यों नहीं, और हमारा जो ट्रांसफर के लिए कोई रिक्वेस्ट रखता है मतलब स्टेट में, तो उस पर जेन्युइनली मैडम वर्कआउट क्यों नहीं होता है। और दूसरा ये है मैम कि मतलब हम ट्रांसफर के लिए अभी भी हम दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, और जब ट्रांसफर पॉलिसी खुलती है तो मतलब इट्स लाइक मतलब कि इनकम का सोर्स है, मतलब ऑफ द पेपर ट्रांसफर पॉलिसी ओपन, मतलब ये माना जा रहा है कि इनकम का सोर्स है उस टाइम बीइंग के लिए। तो आपके पेपर को जेन्युइनली कंसीडर नहीं करना, और इवन मैं तो कहता हूँ कि जैसे एम्प्लॉय अगर अपने घर के आसपास या अपने डिजायर्ड प्लेस पे होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मतलब आप क्या मतलब इस पे वो कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में कि स्टेट में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, या हम मतलब अपने सीनियरों से यही सीखे कि भैया 5 लाख दो और आ जाओ अपने डिजायर्ड प्लेस। तो स्टेट में मतलब सेंट्रल में आप भी मतलब ऑब्जर्व किए होंगे कि इस तरीके की चीजें नहीं है मैम। वहाँ पे पूरा जो ट्रांसफर पॉलिसी है एक्चुअल में उसमें वर्कआउट होता है, लेकिन यहाँ पे बस पेपर में दिखता है कि हाँ काम हुआ है। आप जेन्युइनली पेपर रखो आप बंच ऑफ पेपर वहाँ पे ड्रॉप करते जाओ मतलब कोई यूज का नहीं है मैम। देखिए हम लोग जब ये सोचते हैं ना कि ये करने वाला कोई दूसरा है और हम केवल इसका जो शॉर्टकमिंग्स है वो देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। जब आप उस पोजीशन में हो, देखिए जो चल रहा है अपन सबको तो खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो जब आप किसी ऐसी पोजीशन में थे जब आप उसको दूसरी तरीके से कर सकते थे, डिजिटली कर सकते थे, और टेक्नोलॉजी के बिना ये नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज आना और उसको उसके हिसाब से करने से ही ये खत्म हो सकता है। भाई अगर आपको राशन कार्ड बनाना है तो आप उस पर अप्लाई करिए, उस पर अगर नहीं मिल रहा है उसको राशन कार्ड तो कारण बताइए, अगर कारण नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप उसका इतने दिन में उसको राशन कार्ड दीजिए। अब नहीं हो रहा है तो किसी को तो देखना पड़ेगा ना कि राशन कार्ड की एप्लीकेशन दी हुई है, उसको 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, उसको क्यों नहीं मिला। पर हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक हमें कोई बोलेगा नहीं, अगर तो फिर नहीं हो पाएगा। और उसको किस देखिए मैं आपको कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं दे सकती, पर मेरा ये मानना है कि यदि आप कोई काम चाहते हैं कि ये हो
और इस तरह से हो जिसमें कि करप्शन नहीं हो, डिले नहीं हो और पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो। तो भगवान ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम कर सकें, पर हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस कहाँ है? मतलब एक तो सिद्धांत जो बताते हैं कि जहां बैठे हैं, जिस काम को करने बैठे वही करें। जैसे यदि हम पढ़ने बैठे हैं तो यहाँ पढ़ें। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। माई सन वाज सेइंग कि जब छोटा था कि टेलीविजन के सामने वो खाना खाएगा। टेलीविजन था बेडरूम में, तो बेड पे रख के खाना खाएगा। अब आप उसे कहीं नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो सुनेगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको बेड पे खाना देंगे, पर फिर आपको डाइनिंग टेबल पे सोना पड़ेगा। तो उसको समझ में आया कि बेड होता है सोने के लिए और डाइनिंग टेबल होती है खाने के लिए। तो बात ये कि छोटा सा इंटरवेंशन है, पर आप उसको कैसे लेते हो। अब लोग जो है वॉशरूम में गए हैं तो मोबाइल देख रहे हैं। अब मोबाइल देखने की जगह नहीं है वो। आप मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये है कि डिसिप्लिन तो उसी से आएगा। अब अपन यदि ये सोचे कि हमको ये काम करना है, तो फिर आपका दिमाग उसमें चलेगा। और आई कैन शेयर माई नंबर। आपको कहीं तकलीफ आए तो आप मुझसे, मैं भी सोचूं आपके लिए कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आपसे कोई काम नहीं कराना है, ना मेरे को ऐसे काम कोई पड़ते हैं, पर आप मेरा नंबर लिखिए। अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे 85-277-11-919। प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं आपको सॉल्यूशन ना भी दे सकूं तो भी कम से कम बात करके हमारा एक एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बता सकती हूँ तो ठीक है, नहीं बता सकती हूँ तो भी ठीक है ना। हाँ हाँ, कैसे लेंगे? यहाँ खड़े जाओ, राइट, सभी लोग पास पास आ जाओ। वो आ जाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। इन्हें तो फ्रेंड हो जाएगा। हाँ, यहाँ बैठा दीजिए ना। तो यहाँ बैठाने से उधर से ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उधर यहाँ मैम बैठा दीजिए यहाँ पे। मैम बैठ जाइए। हाँ हाँ, पीछे इसको थोड़ा ऊंचा कर दो, ऊंचा कर दो। हाँ, बेंच वाले बैठ जाओ, बेंच वाले बैठ जाएंगे। आप लोग में से फर्स्ट मतलब दिन की हाइट पर बैठ जाओ ना, आगे वाले हम देख रहे हैं। आगे निकल जाओ, बैठ सकते हैं। एक मिनट लो। हाँ, आगे पीछे खड़ा हो जाओ। ये हाँ ठीक है, नीचे नहीं दिखेगा फिर। भैया थोड़े इधर नहीं है। आप लोग इधर में आ गए, एक खाली विमेन के साथ ही जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है, एक साथ ऐसा है क्या मैम? चलो अच्छा, खड़े हो जाओ, अब तो हो जाए।